नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट की। इस आम बजट में सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखने की पूरी कोशिश की है, फिर चाहे व्यापार को बढ़ावा देने की बात हो या फिर किसानों को राहत देने की। रेल बजट में किराए और माल भाड़े में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं करके सीधे तौर पर जनता को लाभ पहुंचाया गया है। इसके साथ ही जनता पर किसी तरह का कोई टैक्स भी नहीं बढ़ाया गया। हालांकि मिडिल क्लास को इस बजट से निराशा हाथ लगी है, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। सरकार का कहना है कि यह बजट देश को विकास के पथ पर लेकर जाने वाला है और आने वाले 25 सालों का रोड मैप इस बजट के माध्यम से दर्शाया गया है। अब सवाल यह है कि क्या यह बजट महंगाई पर लगाम लगा पाएगा? क्या इससे बेरोजगारी कम होगी? क्या किसानों की आय दोगुना होगी? और क्या यह बजट देश के लिए बूस्टर डोज का काम करेगा? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन पहले वो आपको हम सुनवाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान क्या कुछ कहा, क्या कुछ खास बातें इस दौरान रही हैं, सुनिए। The strengthening of health infrastructure, speedy implementation of the vaccination program, and the nationwide resilient response to the current wave of the pandemic are evident for all. The productivity-linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. This budget continues to provide impetus for growth. It lays a parallel track of 1. A blueprint for the Amrit Kal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes, and the scheduled tribes. Road transport. PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The National Highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. Railways will develop new products and efficient logistics services for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railways network to provide seamless solutions for movement of parcels. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country, with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime, intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime.
This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation. Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. At present, the central government contributes 14% of the salary of its employee to the National Pension System, NPS, Tier 1. This is allowed as a deduction in computing the income of the employee. However, such deduction is allowed only to the extent of 10% of the salary in case of employees of the state governments. To provide equal treatment to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the NPS account of state government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of state government employees and bring them at par with central government employees. Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. और इस बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जहां हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इस बजट का स्वागत किया है, तो वहीं कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा का कहना है कि बजट से लोगों को निराशा मिली है। वर्तमान बजट 100 साल के ढांचागत विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये बहुत ही अभिनंदनीय बात है जिसमें आगे का विचार किया जा रहा है और मैं कहूँगा कि ये विकास उन्मुखी बजट है और इस बजट में सबसे ज़्यादा कोई इस बात पर ध्यान दिया गया है तो आगे का विकास किस प्रकार से हो। देश की ग्रोथ में 2.7% विकास के रहने का एक अनुमान लगाया गया है। जीएसटी भी इस बार 1,40,986 करोड़ इकट्ठा हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहूँगा कि रोजगार उन्मुखी बजट है जिसमें 60 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। इस प्रकार से ढांचागत विकास की बात इस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने की है। मैं अभिनंदन करूंगा उनका कि उन्होंने 25,000 किलोमीटर हाईवेज बढ़ाने की बात इसमें की है। इसमें 400 वंदे मातरम ट्रेन चलाने की बात की है। 100 ऐसे कार्गो स्टेशन, शक्ति कार्गो स्टेशन बनाने की बात की है। अर्बन ढांचा बढ़ाने की बात की है क्योंकि आने वाले जब भारत 100 साल का होगा तो उसकी 50% आबादी शहरों में रहेगी। तो ये जो विकास उन्मुखी बजट है, जो ढांचे पर जोर दिया गया है, इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि सबको आवास देने का जो प्रधानमंत्री का सपना है, 80 लाख आवास एक साल में बनाएंगे, नए मकान, और 48,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च करेंगे। जब भी बजट पेश होना होता है, देश के लोगों को बहुत उम्मीद होती है देश की सरकार पे, विशेष रूप से वित्त मंत्री पे, कि देश का वित्त मंत्री देश के आम नागरिक को बजट में क्या राहत देगा। जिस प्रकार से पिछले दिनों महंगाई दर बहुत बढ़ी, आज महंगाई बहुत बड़ी हुई है, बेरोजगारी बहुत बड़ी हुई है। आज मिडिल मैन को इनकम टैक्स में पिछले 7 सालों से कोई रियायत नहीं मिली है।
सबको उम्मीद थी कि इस बार महंगाई को कैसे रोका जाएगा, टैक्स में कमी लाएगी सरकार, रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, मिडिल मैन इनकम टैक्स में राहत चाहता था। परंतु इस बजट में सबको निराश किया। इवन जो हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, जो पिछले 13 महीने से जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, जिनको ये कहा गया था कि हम एमएसपी की गारंटी पे एक कमेटी बनाएंगे, परंतु इसके अंदर केवल यही कहा गया कि एमएसपी पे खरीद करेंगे। आप देखते होंगे कहने से नहीं होता। आपके यहाँ हरियाणा की बात करें, जो बाजरा है, मक्का है, एमएसपी से 800 रुपये क्विंटल कम बिका, किसी ने नहीं, कोई गारंटी की बात नहीं कही गई। तो ये बजट पूरी तरह से निराशा। और चलिए, सत्ता पक्ष की ओर से भी कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लेते हैं। पिछले 2 सालों में जो कोविड का एक रहा, तीनों लहर रही, उसमें इकोनॉमी पूरी दुनिया की, हमारे यानी सब जगह लोगों की बुरी हालत हो रही थी। और इन हालात के अंदर एकदम नॉर्मल बजट लेके आना, बड़ा मॉडरेट बजट लेके आना, मैं समझता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी बहुत बधाई के पात्र है कि कोई लोगों पे टैक्स नहीं लगा और उसके बाद बड़े अच्छे तरीके से मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देके बहुत बढ़िया बैलेंस्ड बजट लाया गया है। हमारे नेता श्री दुष्यंत चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री हरियाणा, शुरू से ही प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के हिस्सा रहे हैं। प्रो डेवलपमेंट, प्रो एम्प्लॉयमेंट, और उस एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने एक बड़ी लड़ाई लड़ी। सत्ता में आने के बाद उस संघर्ष का फ्रूटफुल रिजल्ट ये रहा कि 75% आरक्षण हम हरियाणा में लागू करने में कामयाब रहे, जिसका आने वाली पीढ़ी को फायदा मिलेगा। आज उसी 75% आरक्षण से जुड़ा जो विषय इस बजट में मुझे देखने को मिला, केंद्र की सरकार कहती है कि 60 लाख का जॉब टारगेट, ये एक बहुत अच्छा विषय है, एक बहुत अच्छी सकारात्मक सोच है। तो चलिए, हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको हम बताते हैं इस बजट की जो बड़ी बातें हैं वो क्या है, कौन कौन से ऐसे बड़े ऐलान किए गए आपको हम बता रहे हैं। बजट में 25 साल का ब्लूप्रिंट दिखाया गया है, ब्लूप्रिंट दिया गया है। 60 लाख लोगों को नौकरी देने की बात भी कही गई है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात की गई है। LIC का IPO जल्द आएगा, इस बात का ऐलान भी इस बजट में आज किया गया। 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाने की बात की गई है। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने की बात भी की गई है। तो इस बजट की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। निजी निवेश को बढ़ावा देने का टारगेट भी सरकार ने रखा है। इसके साथ ही MSP पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी, इस बात का ऐलान भी किया गया। और 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान भी सरकार ने किया है। इसके साथ ही 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, यह ऐलान भी आज इस बजट के दौरान हुआ है। 130 लाख MSME को अतिरिक्त कर्ज देने की बात कही गई है। 750 नए ई-लैब्स बनेंगे, यह भी ऐलान हुआ। इसके साथ ही गांव और शहरों में 80 लाख नए मकान बनाने का ऐलान किया गया। 2022-23 में चिप वाले ई-पासपोर्ट बनेंगे। शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाया जाएगा। तो इस बजट की जो बड़ी बातें हैं ये आपको हम बता रहे हैं। बैटरी अदला बदली पॉलिसी बनाई जाएगी। दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट देने का ऐलान सरकार ने किया है। इसके अलावा कर्मचारियों की पेंशन में जो टैक्स है उसमें कटौती की बात की गई है। NPS में 14% केंद्र और राज्य का योगदान रहेगा। क्रिप्टो करेंसी से इनकम पर 30% टैक्स सरकार वसूलेगी। क्रिप्टो करेंसी पर 1% TDS भी कटेगा। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ पंकज गुप्ता जी हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ सुरेश रोड जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और इसके साथ ही सुखबीर हुड्डा जी हमारे साथ हैं जो कि आर्थिक विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले सुखबीर हुड्डा जी, मैं आप ही के पास आते हुए सर, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? आपको लगता है जो विपक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था, कल हम सुन रहे थे, तमाम कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि भाई ये चुनावी बजट होगा क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में सरकार की नजर इन विधानसभा चुनावों पर भी है और इसीलिए ये लोक लुभावन बजट हो सकता है। आपको लगता है ऐसा बजट है ये? कैसे आप इस बजट की व्याख्या करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप देखिए
आज के टाइम कम से कम 65% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सोशल मीडिया पे आ चुकी है। अगर आज आपका ट्रेंड देखें सोशल मीडिया के ऊपर, तो कम से कम इस बजट को इतनी वाहियात या आप कह लीजिए लो ग्रेडिंग मिली है, लो इसको उस बजट उसमें काउंट करा गया, क्योंकि इसमें ना तो मिडिल क्लास का ध्यान रखा गया, ना इसको फार्मर्स का रखा गया है, ना इसके अंदर कोई महिलाओं को स्पेशल कोई दी गई है, ना कोई स्कूल के बच्चों को जो एजुकेशन के ऊपर, जो बच्चों को एजुकेशन के ऊपर जो आज के टाइम ऑनलाइन होने जा रही है उसके अंदर कोई रिबेट दी गई। मतलब कुल मिला के जो ये था कि भाई जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनकम टैक्स स्लैब में होगा और कुछ और भी बेनिफिट्स आएंगे, सरकार उसका टेक केयर करेगी, तो कोई और इसका ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं है हमारे पास जिसको हम हाईलाइट कर सकें, या जिसके ऊपर हमको ये आज के टाइम ये या जो रूलिंग पार्टी है ऐसा कोई पॉइंट लेके इसके अंदर लेके जाए इलेक्शन के अंदर और उसको इलेक्शन के अंदर उनको एडवांटेज मिले। मैं नहीं समझता कि कोई दो चार चीजों को अफेक्ट करने के लिए, जैसे उन्होंने कहा मोबाइल सस्ता हो जाएगा या उसका चार्जर सस्ता हो जाएगा या उसका लीड सस्ती हो जाएंगी या लेदर सस्ता हो जाएगा, ये कब होंगे, कैसे होंगे? जो मुद्दा आता है, अगर आप देखिए कोई भी बजट का होता है वो फार्मर रिलेटेड होता है, एमएसएमई जो का सेक्टर होता है उसका ध्यान रखा जाता है, फार्मर्स का ध्यान रखा जाता है, तो कि इन तीनों क्लास में से किसी को नहीं ध्यान रखा गया। तो मेरा ये मानना है कि इस बजट को क्या कहते हैं आउट ऑफ 10 1 आउट ऑफ 10 मिलता है। यानी 10 में से सिर्फ 1 नंबर दे रहे हैं आप? बिल्कुल पे मैं नहीं, ये सोशल मीडिया पे आप लोगों का ट्रेंड दे रहे हैं आप। पंकज गुप्ता जी, आप तो बीजेपी के नेता तो हैं ही, लेकिन सीए भी हैं आप भाई। आप सुन रहे हैं सुखबीर हुड्डा जी क्या कह रहे हैं? 10 में से सिर्फ 1, 10 में से सिर्फ 1 नंबर दे रहे हैं, यानी इतना खराब बजट वो बता रहे हैं। और उनका तो ये भी दावा है कि अब तक का सबसे खराब बजट है ये। अमित जी, मुझे बड़ी हैरानी है। हुड्डा जी हमारे मित्र है और बड़े वरिष्ठ नेता है और एडवोकेट भी है प्रोफेशन से। आपने उनसे क्वेश्चन किया कि ये एक कोई पॉपुलर बजट गवर्नमेंट देने वाली है इलेक्शन को देखते हुए, ये खुद ही मान रहे हैं कि जो ये बजट दिया है ये कोई इलेक्शन को देख के नहीं दिया गया बजट। ये इलेक्शन में कोई आम आदमी के लिए कोई उसको लुभाने के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये बजट दिया गया है देश हित में दिया गया है। और वित्त मंत्री जी इसके लिए साधुवाद, उनको बड़ा बड़ा साधुवाद कि उन्होंने जो ये इलेक्शन 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं इनको देखते हुए भी कोई पॉपुलर बजट नहीं दिया है। जो ये बजट दिया है विकास मुखी बजट दिया है, समावेशी विकास का इसमें लक्ष्य रखा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया है, उत्पादकता बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया गया है, क्लीन एनर्जी की तरफ ध्यान दिया गया है, और जो भाई साहब ने कहा कि एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज तक की हिस्ट्री में ई विद्या प्रोग्राम और 1200 से 200 चैनल और हर चैनल हर क्लास के लिए एक अलग से चैनल, इतना बड़ा प्रोजेक्ट की सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया। अरे इसको एनालाइज तो कीजिए, 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे, 60,000 करोड़ का एलोकेशन घरों में टैप के द्वारा स्वच्छ पानी देने का, 7.5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन। आप देखिए ना, अगले 3 सालों में 400 वंदे एक्सप्रेस, लगभग 48,000 करोड़ पीएम आवास योजना में 80 लाख हाउसेज बनाने का। एमएसपी के ऊपर भी उन्होंने 2.7 लाख करोड़ रखे हैं किसानों के लिए। कृषि ड्रोन, केमिकल फ्री फार्मिंग, तिलहन की खेती को बढ़ावा, डिफेंस सेक्टर में डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा। आप इस बजट में देखिए, आप कहते जनता की डिमांड पे लोभ लुभावना बजट तो आप कभी भी बना सकते थे। मैं तो कह रहा हूं कि वित्त मंत्री जी ने अपनी पार्टी हित को ना देखते हुए एक 25 साल का उन्होंने बोला भी हमने 25 साल का विजन पेश किया है, देश के लिए विजन पेश किया है। तो इसमें हुड्डा साहब को क्या आपत्ति है? मेरे को ये नहीं समझ आया कि वो कितने क्वेश्चन मार्क को उठा रहे हैं। नहीं, वो क्वेश्चन मार्क इस बात पर कर रहे हैं सर कि किसान आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे। किसान ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई 2019 में आपको याद भी होगा जब मैनिफेस्टो आया था लोकसभा चुनाव का, तो उसमें बीजेपी ने यह वादा भी किया था जिसमें कहा गया था कि 1 लाख तक का जो कर्ज है वो किसानों को हम देंगे 0% ब्याज पर। उम्मीद ये की जा रही थी कि पहले यह वादा पूरा नहीं हुआ, इस बार हो सकता है कि आप इस वादे को पूरा कर दें
क्योंकि किसान दोबारा से एक बार फिर से आंदोलनरत होने पर मजबूर हो रहे हैं। वो इस बात को, ठीक है, मैं आ रहा हूं, मेरा सवाल आप सुन लीजिए सर, मेरा पंकज जी आप सवाल पूरा सुन लीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं। सवाल हो सकता है मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बड़ा इसलिए भी क्योंकि कई बातें आपने की हैं और इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मेरी बात भी पूरी हो जाए, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। सर, मिडिल क्लास जो है वो आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप टैक्स स्लैब में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करेंगे, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करेंगे, उसको आप बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर बात यह है सर कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको लेकर लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। देखिए अमित जी, मैं फिर एक बार वही बात दोहरा रहा हूं कि वित्त मंत्री जी ने, देखिए 2 साल से कोविड की सिचुएशन थी और देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ा। अब वो अर्थव्यवस्था में रिकवरी आने लगी है। वित्त मंत्री जी ने देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए एक बार विकास की तरफ अपना ध्यान रखा है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट करेंगे तो उसका बेनिफिट अपने आप ही आम आदमी को मिलेगा। अगर रेलवे का सफर सुरक्षित और अच्छा बनाया जाएगा तो उसको आम आदमी को फायदा मिलेगा। अगर आप सड़कों को अच्छा बनाएंगे तो जो उस पर चल रहे वाला आम आदमी है उसी को फायदा मिलेगा। अगर आपके घर में जल से, आपके घर में वाटर टैप से पानी आएगा तो उससे आम आदमी को फायदा मिलेगा। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है पंकज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं फिर से लौट रहा हूं सर। कैश जी, हाँ जी प्लीज। जी मैं आ रहा हूं पंकज जी आपके पास। रोड साहब भी हमारे साथ है, सुरेश रोड, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रोड साहब, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि आप ही की प्रवक्ता कल बैठी थी हमारे साथ, महिमा जी, वो तो ये कह रही थी, अमित जी देख लीजिएगा आप, लोक लुभावन ये वो होगा इनका बजट, क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि किस तरीके से हमें जीत हासिल करनी है यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में, 5 राज्यों विधानसभा का चुनाव है। आपको लग रहा है चुनावी बजट है? देखिए, पहले तो आपने जो जिक्र किया हमारी प्रवक्ता महिमा जी का, उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं उनकी बात को नकारता नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात में ऐड करता हूं और बात कि चुनावी बजट अपने तरीके से उन्होंने बना भी लिया, लेकिन इनकी कहते हैं ना काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। जनता इनको आज की डेट में किसी भी बात के, किसी भी लुभावने नारे के लिए माफ नहीं करने वाली इन चुनाव में 5 स्टेट। नहीं, आपको इसमें लुभावना लग क्या रहा है? आपको इस बजट में, आप मुझे ज्यादा नहीं, मैं तो कह रहा हूं आपसे दो बातें ऐसी मुझे बता दीजिए। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूं आपसे, सिर्फ आप मुझे 2 बड़ी बातें बता दीजिए। रोड साहब, नहीं रोड साहब, मैं पूरा समय दूंगा आपको, इसलिए जोड़ा सर आपको। रोड साहब, मेरा सवाल सीधा से आपसे, मैं बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं सिर्फ 2 बड़ी बातें आपसे जानना चाह रहा हूं जिससे आपको लग रहा है कि ये बहुत दुख लुभावन इसमें वादे किए गए, धरातल पर आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा जो आप बार बार कह रहे हैं कि भाई कोई भी कहे इस बात को कि चुनावों को इसमें ध्यान में नहीं रखा है सरकार ने, लेकिन चुनावों के मद्देनजर ही इस बजट को पेश किया गया है, तो आप 2-3 बातें ऐसी मुझे बता दीजिए, मैं मान लूंगा आपकी बात। देखिए, 25 की बात पे आ जाइएगा। 25 वर्ष की जो बात की, इससे बड़ा लुभावना और इससे बड़ा कोई झूठा वादा नहीं हो सकता। इसके लिए जो व्यक्ति आज 50 साल का है उसको 75 का होना पड़ेगा, और जो 75 का उसको 100 का होना पड़ेगा। और खुद नरेंद्र मोदी जी और सीतारमन जी कितने साल लगाएंगे उसको देखने के लिए कि उनकी चीज इंप्लीमेंट होगी कि नहीं होगी। इन्होंने 2022 में किसानों की आय भी दुगनी करने की बात कही थी, वो तो किसानों ने संघर्ष करके किस तरीके से इनसे रास्ता लिया, दुगनी की छोड़ उनकी आधी से भी कम कर दी थी अदरवाइज इन्होंने। और अब ये बैंक वालों के, LIC वालों के उनके पीछे पड़ रहे हैं, उनकी भी आय दुगनी करके मानेंगे। किसानों की तरह भी छात्रों के पीछे लग गए। 25 की एक बात तो ये होगी, आपने 2 चीजें पूछी मेरे से, 25 साल वाला लुभावना नारा है इनका, सीधी बात है। दूसरी बात 25,000 किलोमीटर की बात हंस रहे हैं आपकी बात पर, नहीं, गुप्ता जी की बात छोड़िए, बात सीरियस है, बजट की बात हो रही है। जी बोलिए। हाँ, तो गुप्ता जी तो हंसेंगे बिल्कुल, इनकी तो बात जो अभी मैं सुन रहा था कि 20 से पानी आएगा, ये कोई चार्टेड अकाउंटेंट सीए बात नहीं कर सकता इस टाइप की जो अभी बातें सुनने को मिल रही थी। नहीं, वो तो बतौर बीजेपी नेता बैठा है। ये 20 से पानी आएगा, लोगों को मिलेगा, सड़क बनेगी, लोग चलेंगे, ये बातें बजट पे। पंकज जी आ रहा हूँ, पंकज जी उनको बोलने दीजिए, जैसे उनकी बात पूरी होगी फिर से लौटूंगा आपके पास। मिल रहा क्या गलत बात है क्या? हाँ, नहीं, आम आदमी का आज पानी के ऊपर भी अधिकार नहीं है। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ पंकज जी, मैं लौट रहा हूँ। आप लोग उनको बोलने दीजिए, मैं बीच में मैं रोड साहब बोल रहा हूँ। पंकज जी
वो आपके बीच में नहीं बोले थे। पंकज जी, मैं बीच में नहीं बोला, मैं इनको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बात तो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति जानता है कि नल से पानी आएगा तो और सड़क बनेगी तो लोग चलेंगे। इसमें कोई ये चार्टेड आपके पास भी आ रहा हूं, उनकी बात जैसे पूरी होती है मैं आता हूं। प्रवक्ता जी टीवी पे बात नहीं हो सकती, बजट पे चर्चा कर रहे हैं, इस टाइप का मजाक शोभा नहीं देता। लोग आपके चैनल को क्या कहेंगे और प्रवक्ता को क्या बोलेंगे? बोले दूसरी बात, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिएगा। 25,000 किलोमीटर की बात करने वालों को आपके चैनल से दावे के साथ सुरेश रोड कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे यह बताना चाहता है कि पीपड़ी से लेके कुरुक्षेत्र के 5 किलोमीटर की सड़क नहीं बना पाए पिछले 7 साल में, जहां पर विश्व प्रसिद्ध गीता जयंती का पता नहीं विदेशों तक में 4400 की गीता की कॉपी तक भेजते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अरे गड्ढे खुदे पड़े हैं 5-5 फुट के, शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन की बात है जी। जो बातें यहाँ पर हो रही थी अभी ये चर्चा का विषय नहीं है। दूसरी बात, मैं एक हुड्डा साहब की बात से भी मैं सहमत हूँ। उन्होंने भी जो बड़ी अच्छी बात कही, आम आदमी को राहत देने का इसमें कहीं भी प्रपोजल नहीं है। आप शिक्षा की बात करते हैं, आपने नर्सरी स्कूल के छोटे बच्चों के लिए जब वो शिक्षा के लिए दाखिला लेते हैं, ड्राइंग टूल आती है, ड्राइंग का जो सामान आता है उस पर भी आपने 5% GST लगा दी। आपकी जो रोड साहब वो लिखने के लिए बच्चों को ड्राइंग बनाने के लिए यानी खेल बनाने के लिए जो उसका जो स्लेट बोलते थे, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, उसपे भी GST लगा दी। वन वे नहीं होना चाहिए, टू वे होना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। अमित जी एक मिनट का समय चाहिए। शिक्षा के दरवाजे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बंद करने का कार्य किया इस बजट में। शर्म आनी चाहिए इस तरीके की सरकार को। मेरा सवाल सुन लीजिए कि आपने शिक्षा का क्या ध्यान रखा बजट में, किसानों के लिए क्या किया, युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या किया। और एक बात और है अमित जी, रोटी कपड़ा और मकान 3 चीजें होती हैं। आपने मकान की बात लीजिएगा, स्टील महंगा कर दिया और सीमेंट का कट्टा महंगा कर दिया, कैसे मकान बनेगा? सर वो तो कह रहे हैं 1 साल में 80 लाख मकान देंगे, कर दिया, दावा किया गया है, जहां तक बात है ऐलान किया गया है बजट में। और खाने के तेल का 270 का रेट है। तीनों चीजें, रोटी कपड़ा और मकान छीनने का काम किया है इस तानाशाह सरकार ने। इसको जनता माफ नहीं करेगी। हुड्डा साहब ने तो 1 नंबर दे भी दिया, मैं इसको -10 देता हूँ। ये बजट नहीं है, ठीक है। ये 5 स्टेटों में चुनाव को देखते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए एक जुमला फेंका है, जैसे अमित शाह जी जुमला 15 लाख का कहते थे ना, ये 15 लाख वाला जुमला है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं ये वादा करता हूँ आपसे, ठीक है। लेकिन रोड साहब होगा, मैं ये दावा करता हूँ, ये जुमला साबित होगा आने वाले समय में। बजट का और जनता का कहीं भी आपस में तालमेल नहीं बैठता। जनता की आवश्यकताओं का इस बजट में कोई भी सरोकार दिखाई नहीं पड़ता कि सरकार ने क्या किया। ठीक है, लेकिन रोड साहब अगर रेल किराए में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी ना की जाए, रेल का जो भाड़ा है उसमें कोई बढ़ोतरी ना की जाए, आम आदमी के लिए कहा जाए कि भाई हम पीएम आवास के तहत 80 लाख लोगों को एक साल के अंदर मकान देंगे जी, हर घर नल से जल के लिए 60,000 करोड़ का आवंटन कर दिया जाए, 60,000 लाख करोड़ का, ठीक है। तो हाँ ठीक है सर, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। इसमें मैं इंटरवीन करूंगा। हाँ मैं आ रहा हूँ हुड्डा साहब, मैं आ रहा हूँ हुड्डा साहब। नहीं रोड साहब से मेरा सवाल तो होने दीजिए पूरा। मेरा सवाल 80 लाख 1 साल के अंदर घर बनाने की बात कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल वर्ल्ड वाइड? मुझे एक कंट्री बता दीजिए जो ये पॉसिबल कर हुड्डा साहब, आ रहा हूँ हाइपोथेटिकल। हुड्डा साहब मैं आ रहा हूँ, मेरा सवाल आपने पूरा नहीं होने दीजिए, मुझे बीच में रोक दिया आपने। सवाल ही गलत है सर, सवाल ही गलत है। हाँ नहीं अमित जी मैं बताता हूँ ना, हाँ ये 15 लाख के जुमले की तरह सवाल है। एक साल में 80 लाख घर बना देंगे। अमित जी जी बोलिए आप बोलिए। 2 रुपए के रेलवे टिकट को 50 रुपए, प्लेटफॉर्म टिकट को 2 रुपए से 50 रुपए करके जो पैसा जुटाया जा रहा है ना, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार को यह सलाह देती है कि जो रेलवे लाइन ये तो आप मानेंगे ना की जाती है, फिर रोड साहब देखिए रोड साहब, मैं इस बात से आपकी इस बात से सहमत हूँ कि भाई मिडिल क्लास के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। रोड साहब मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि मिडिल क्लास के लिए किसी तरह का कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये भी तो आप मानेंगे कि आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं डाला गया है, ये भी तो आप मानेंगे ना? नहीं, कैसे नहीं डाला गया? सारा ही आम आदमी से। आप ये बताइए ना, बजट में भारतीय रेलवे को साइड में करके अदानी की अंबानी की ट्रेनें चलेंगी, प्लेटफॉर्म का टिकट 2 रुपए से 50 रुपए आम आदमी ने कर दिया ताकि वो अदानी की अंबानी की ट्रेन को। लेकिन पंकज जी ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, ये बात तो सही है। मिडिल क्लास जो टैक्स स्लैब में कमी की बात जो सोच रहा था, जो उम्मीद कर रहा था, और जनता की भलाई उसको आपने जस का तस रखा, उसमें आपने कोई बदलाव नहीं किया, उसमें आपने कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन आप कॉर्पोरेट टैक्स को, आप जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो सरचार्ज है, उसको आप कम कर देते हैं, उसको 18 से 15% कर देते हैं। और राहुल गांधी ने ट्वीट किया है
तमाम कांग्रेस नेताओं के ट्वीट सामने आ रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई देखो हम तो पहले ही कह रहे थे कि उद्योगपतियों की सरकार है, और आज भी बजट में जो ऐलान हुआ है वो उद्योगपतियों के लिए हुआ है, ना कि आम आदमी के लिए। तो मौका दे दिया ना आपने विपक्षियों को, यही कहना चाहते हैं, और ये साबित होगी हमारे नेताओं की बात। राहुल जी ने जो बोला था, राहुल जी से दूरदृष्टि वाला नेता दुनिया में नहीं आज, जो उन्होंने बोला वही काम नरेंद्र मोदी जी साबित करते जा रहे हैं। अब जवाब ले लेते हैं राहुल गांधी को दूरदृष्टि वाला नेता मैं लौटूंगा आपके पास, जवाब ले लेते हैं पंकज जी, साबित कर रहे हैं। चलिए पंकज जी बोल तो रहे लेकिन आवाज नहीं आ रही है पंकज जी आपकी हमें। चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूं पंकज जी आपके पास भी, आपका फोन पैच करते हैं फिर से। हुड्डा साहब आप बोलिए। हाँ जी अमित जी बोलिए। हाँ जी अमित जी, हाँ आप बोलिए कुछ कह रहे थे आप अभी ना। हाँ मैं अमित जी ये कह रहा था कि आप ये कह रहे थे ना कि भाई इनसे पंकज जी से सवाल पूछ रहे थे और गौर साहब उसके ऊपर वो कर रहे थे, रिएक्शन दे रहे थे अपनी। मैं ये कह रहा था कि आज के टाइम जब से ये कोविड आया है 2019 के बाद से, जब से ये कोविड आया है, अगर आप देखेंगे कोई भी एम्प्लॉय जैसे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, गवर्नमेंट सेक्टर का है या सेमी गवर्नमेंट का है, हर कोई डिडक्शंस पे काम कर रहा है। हर कोई, किसी की सैलरी 40% डिडक्ट हुई है, किसी की 25% पे काम कर रहा है। लोग इवन अपने बच्चों के ट्यूशन से वो नहीं पढ़वा पा रहे हैं। मतलब जिस तरह का, मतलब सरकार ने मेरा ये कहना था कि एक बजट जो चार्मिंग होता है, जब जो क्या कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या फिक्की है, CII है या वर्किंग क्लास है या CH की कैटेगरीज है, कंपनी सेक्टर्स की क्लास है, वो एक तरीके से जाते थे, बजट को एक फेस्टिवल की तरीके से देखते थे, उसके नोट्स बनाते थे और अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी बिल्डिंग के अंदर उसके हाईलाइट्स बताते थे। आज के टाइम वो कंपनी सेक्टरीज, फिक्की, CI सब छुपते फिर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वो जो बजट का एक अट्रैक्शन होता है, और जो निर्मला सीतारमण जी कोई फाइनेंस एक्सपर्ट तो है नहीं, इनको एक ड्राफ्ट करके दे दिया, इन्होंने वहां पे जाके सॉफ्ट कॉपी में वहां पे जाके रीड कर दिया। इनको खुद अगर आप डिबेट पे लेके आइए, इनको खुद पूछिए कि आप बजट के अंदर आम आदमी को, कॉमन आदमी को कैसे ये बेनिफिट दे रहा है और इसके क्या नुकसान हो रहे हैं, वो खुद नहीं बता पाएंगे। तो अमित जी ओवरऑल अगर हम बात करें, इसको पार्टी दायरे से उठ के बात करें, अगर ये मैं एज ए एंकर या एज ए एडवोकेट या एज ए एक्सपर्ट में भी बात कर रहा हूँ, अगर एज ए इंटेलेक्चुअल आदमी में बात कर रहा हूँ, तो इस बजट का जो अट्रैक्शन है, जो एक बजट की जो कल न्यूज़पेपर में लोग एकदम से खबर देखने जाते थे, वो कोई नहीं पढ़ने वाला है। उसका रीजन क्या है? ना कॉमन मैन को मिला, ना महिलाओं को मिला, ना बच्चों को मिला, ना। लेकिन हुड्डा साहब देखिए, आप तो एक्सपर्ट हैं इसके, आप भी तो इस बात को समझ रहे हैं ना कि भाई पिछले 3 साल से तो कोरोना काल है, कोरोना के बीच हम जी रहे हैं, और किस तरीके से आर्थिक नुकसान हुआ है, आर्थिक जो विकास की गति है वो रुकी है, वो तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो सरकारी खजाने को ध्यान में रखते हुए कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं किया सरकार ने, तो ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि भाई सरकारी खजाने पर बहुत ज्यादा अतिरिक्त बोझ ना पड़े, एक बैलेंस बजट पेश करने की कोशिश की है। तो ये भी इस तरीके से भी देखा जा सकता है ना। तो देखने वाली बात है जी अमित जी, अगर आप इस तरीके साल की बीमारी के बाद भी, हाँ मैं आ रहा हूँ पंकज जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास सर, जवाब में आती पंकज जी आ रहा हूँ। अमित जी इस बजट का ना जो सबसे बड़ी इरिटेटिंग और जो लोगों को जो चुभ रही है या लोगों को जो तकलीफ दे रही है, वो कह रहे हैं कि एक साल में 80 लाख मकान बना के देंगे। 80 लाख मकान आप वर्ल्ड के अंदर, आई ट्रेवल, मैं 60 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर चुका हूँ, आप देख लीजिए कोई अगले एक साल में LNT को ले आइए, टाटा को ले आइए, किसी को किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक बोलेंगे ना। देखिए अगर आप लोग स्टूडियो में होते तो ये संभव होता कि आप एक साथ बोल पाए, लेकिन क्योंकि आप देखिए आपको पता है कि दिक्कत होती है अगर आप एक एक करके। 80 लाख मकानों की बात कर रहे हैं, नहीं 80 लाख मकानों का पंकज गुप्ता जी हुड्डा साहब को रोड साहब को एलोकेशन इस साल में किया गया है। मेरा सवाल सुनिए। आम आदमी को पता है कि 80 लाख मकान घर में नहीं बन सकते, 48,000 करोड़ इस साल खर्च जाएंगे, तो उसी के हिसाब से प्लान किया जाता है, उसी के हिसाब से प्लान। आप जैसे कह रहे थे रिसोर्सेज पे अफेक्ट आ गया, आप GST कलेक्शन रेट देखिए ना, 1.5 लाख करोड़ हो गया, 1.5 लाख करोड़ का GST कलेक्शन है, हर महीने बढ़ रहा है। देखिए जो देश है, जहां तक उसकी बात कर रहे हैं, GDP की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, MSME की बात कर रहे हैं, सब ऑन रोड आ गए हैं। उसके लिए एक प्लानिंग की जाती है, प्रॉपर तरीके से बैठ के एक्सपर्ट की राय ली जाती है, पूरी मीटिंग्स की जाती है, बिजनेसमैन से मिला जाता है, स्टूडेंट से मिला जाता है, महिलाओं से मिला जाता है। इस बजट के लिए कोई तैयारी नहीं करेगी, होमवर्क ही नहीं है अमित जी। प्रॉब्लम ये है कि देखिए पंकज जी देखिए एग्जाम में चले गए, बगैर तैयारी के चले गए। हुड्डा साहब और रोड साहब यकीन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि भाई 2022 तक तो आपने किसानों की आय को भी दोगुना करने का वादा किया था, ये भी दावा आप कर रहे थे, लेकिन क्या आय दोगुनी हुई?
किसान आज भी आंदोलनरत हैं। देखिए दूसरा, अब आप कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर 80 लाख घर बनाकर आप देंगे, आपको लगता है ये फिजिबल है? अमित जी, पहली बात तो मैं इसमें क्लैरिफिकेशन दे दूं, गवर्नमेंट ने अगले कुछ वर्षों में 80 लाख हाउसेज बनाने का लक्ष्य रखा है। उसके लिए 48,000 करोड़ का एलोकेशन इस साल रखा गया है। 80 लाख हाउस एक साल में तो बन नहीं सकते, वो अगले कुछ वर्षों का, उसके लिए 48,000 करोड़ का लक्ष्य एलोकेशन इस बार किया गया है। कुछ एलोकेशन अगले साल होगा, तो अगले 1-2 वर्षों में 80 लाख मकान बना के दिए जाएंगे। गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा है कि 80 लाख मकान इसी साल बन जाएंगे। उन्होंने 80 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा और उसके लिए एलोकेशन 48,000 करोड़ का कल फाइन प्रिंट आ जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिए। इसमें ये लिखा कि अगले कुछ वर्षों में 80 लाख मकान बनाकर गरीबों को दिए जाएंगे। तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि भी इतनी तो कोई ऐसी कोई वो नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है कि एक साल में बन जाएंगे। उसका एलोकेशन 48,000 करोड़ का इस साल के लिए रखा गया है। अगले साल में भी एलोकेशन होगा और इस तरह से 80 लाख मकान बनाकर गरीबों को दिए जाएंगे। नहीं, लेकिन पंकज जी सवाल कहीं पे भी नहीं कहा कि इसी साल बनके तैयार होंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप कल उसके आज बजट के प्रिंट्स आ गए हैं, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, लेकिन पंकज जी क्या आपको लग रहा है कि ये जो बजट आज पेश किया गया है इससे महंगाई पर लगाम लग पाएगी? बेरोजगारी के जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो काबू में आएंगे? आपको लगता है कि जो कृषि क्षेत्र जिसको आप भी मानते हैं कि भाई देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान होता है इसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का, आप भी जानते हैं, मुझसे बेहतर तरीके से आप जानते हैं इस बात को, तो क्या वो बूस्ट करेगा? आपको लगता है कि ये बजट इन सब पैमानों पर खरा उतर पाएगा? अमित जी, इसके लिए अब मेरे को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। जी बोलिए। आप देखिए कि हमारे देश की इस समय पॉपुलेशन 135 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन। हाँ, ऐसा नहीं हर आदमी को सरकारी नौकरी दी जा सके। आप रोजगार से अलग भी बात करें ना कि रेलवे से उससे जो पैसा जुटाया जाएगा, ये एलोकेशन की जो बात आपने बता देते, आज भी बता देते हैं ताकि अगली फिर काम आएगा इनके। जो जितने नीरव मोदी वगैरह बाहर भाग गए ना, वो पैसा कहाँ है? अब गरीब आदमी की जेब पे डाका डाल के आप रेलवे का प्लेटफार्म 2 रुपए से 50 रुपए करके यहाँ तो पैसा जुटा रहे हैं और आप इसको कह रहे हैं देश के विकास में लगेगा, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और जितने उद्योगपति हैं सभी का कर्जा माफ किया जा रहा है। एसबीआई जैसे बैंक आपने मतलब कर्जदार बना दिए, जितने भी बड़े उद्योगपति थे सारे सरकार ने बाहर निकाल दिए देश से धीरे धीरे। कितने तो मोदी चले गए बाहर, तो उन पे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन प्लेटफार्म का टिकट गरीब आदमी ताकि वहां नहीं जा पाए, वो यात्रा नहीं कर पाए और से मिलने नहीं जा पाए, वहां 2 रुपए का 50 रुपए कर रहे हो। आप क्या लॉजिक दे रहे हो और कहना क्या चाह रहे हो आप? ये आपको क्या तरीके देंगे? रेलवे टिकट 2 से 50 रुपए, 2 से 50 रुपए, नीरव मोदी, उसका बजट से क्या लिंक है बताइए? आप तरीके सजेस्ट करना चाह रहे हैं बजट से लिंक? हेलो मिस्टर पंकज, नीरव मोदी भाग गया, वो भाग गया, वो भाग गया। आप कोई सजेस्टिव, कोई पॉजिटिव सजेशन देना बजट से रिलेटेड। बजट से रिलेटेड बता नहीं रहे हैं। आप बजट से बात सुनो, आप बजट की आप बात ही नहीं कर रहे। ये आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं। बजट कैसे बनता है? बजट में एलोकेशन कहां से, एम्प्लॉयमेंट कहां से? अमित जी इनको चुप कीजिएगा, इनको पहले ना इनसे जो सवाल इनको पूछना है जवाब दें। देखिए रोड साहब, देखिए पंकज जी की बात को या तो आपने ठीक से सुना नहीं है। वो जो कहना चाह रहे थे उनका ये कहना है कि अगर हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा तो उससे रोजगार सृजन खुद ही होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। उनका ये कहना है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको नहीं लगता है कि जो वो कुछ कह रहे हैं काफी हद तक ये बात सही भी है? अमित जी मैंने ठीक से सुना है और इस सज्जन को आप ये बोलिए कि मेरी बात ध्यान से सुने। ये मेरे साथ पहली बार आया है, इसको पता नहीं है कुछ भी बात करने का। अनाप शनाप बात कर रहा है, भाषा की मर्यादा रखिए प्लीज रोड साहब। नहीं, ये गलत बात है। अमित जी आप चुप हो जाओगे। वो भी हमारे मेहमान है, आप भी हमारे मेहमान है। देखिए भाषा की मर्यादा रखिए प्लीज। ये फालतू बोलने जा रहा है तुमसे। इसने पहले ये कहा, मैंने बोल दिया पंकज जी, मैंने बोल दिया। पंकज जी आपके बोलने से पहले मैंने बोल दिया। तो मैं कांग्रेस पार्टी से निवेदन करूंगा कि जिसको इस विषय की जानकारी है उसको भेजे। ठीक है, आप कृपया व्यक्तिगत आक्षेप मत कीजिए। नहीं, मैंने खुद ही बोल दिया। पंकज जी मैंने बोल दिया। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखो भाषा की मर्यादा तो हम सभी को रखनी पड़ेगी।
हम अरे भाषा की मर्यादा कैसे रख लेंगे जब आप ये बताइए, ये आदमी सबसे बीच में नहीं बोल रोड साहब देखिए बोलने जा रहा है। दूसरी बात, आप भी इतने सीनियर व्यक्ति हैं रोड साहब, तू तलाक सही नहीं लगता है अमित जी, आप मेरी बात सुनोगे? आपकी मैं ही सुनता रहूंगा। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तू तलाक सही नहीं लगता है, बोलिए आप बोलिए। नहीं, तू तलाक को कौन कर रहा है? तुम तलाक, आप बच्चों में यूटर्न ले रहे हो बिना मतलब। जी मेरी बात सुनिए, जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग है, क्या बोले जा रहा है, इसको आप बंद नहीं कर सकते। ठीक है पंकज जी सुनिए आप। बदतमीज व्यक्ति है वो बोल नहीं पाता। चलिए बोलिए बोलिए रोड साहब बोलिए बोलिए। इसको ऑडियो बंद कर पा रहे एक आदमी अनुशासन में नहीं है। पंकज जी देखिए, पंकज जी वो आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं। पंकज जी वो जब भी आप बोल रहे हैं, हाँ ठीक है सर, समय खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है सर, समय बर्बाद नहीं करना है हमें। आप चैनल पे आगे गुंडागर्दी मत कीजिए। नहीं कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा है पंकज जी, कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा है। आप देखिए, आप देखिए ना, ये व्यक्ति ये कोई नहीं कर नहीं ठीक है, रोड साहब बोल रहे हो, ये व्यक्ति अरे आप बीच में बोलने जा रहे हो, ठीक है नहीं अरे सर ये पर्सनल डिबेट नहीं है ना, ठीक है बोलिए रोड साहब बोलिए। पंकज जी, अमित जी, आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप चुप रहेंगे और धैर्य से इनकी बात सुनेंगे। जी बोलिए। अमित जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन के लिए रेलवे से उससे पैसा जुटाया जाएगा। ये बात आप रिकॉर्डिंग इनकी द्वारा चेक कर लो। ये मुझे झूठा साबित करने के लिए कह रहे हैं कि मैंने तो रोजगार की बात करी। रोजगार की बात तो बाद में करी जब मैं बोलने लगा, जब इनकी पोल खुलने लगी कि इन्होंने पहले पैसा जुटाने की बात करी है। इस बात पे आप इनकी रिकॉर्डिंग से इनकी बाइट चेक कर लो। ये किसने तो सीए बना दिया इसको, ये सीए हो ही नहीं सकता। और ये कहता नॉलेज नहीं है, बजट की बात ही नहीं कर रहे हैं, टूटी से पास आएगा। ये अनपढ़ आदमी नहीं बात करता। आप कांग्रेस के नेता बन गए तो आपको थोड़ा ना, आप तो सीए कर ही नहीं सकते। आप सर आपका पर्सनल हो रहे हैं, आप दोनों ही पर्सनल हो रहे हैं, गलत बात है। अरे पर्सनल नहीं होना सर, ये डिबेट आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए डिबेट है, उन्हीं की डिबेट है, ये पर्सनल नहीं होना है पंकज जी। और इस टाइप की हल्की बात मैंने नहीं सुनी किसी से कि पानी की टूटी से पानी आएगा तो लोग यूज करेंगे। अच्छा, ये नरेंद्र मोदी की सरकार उनके बताएंगे कि पानी की टूटी से जो पानी आएगा उसको लोग प्रयोग करेंगे। आज तक इस हिंदुस्तान के लोगों को ये पता नहीं था कि पानी की टूटी से जो पानी आएगा उसको यूज करेंगे। सड़क बनेगी तो सड़क पे लोग चलेंगे। अच्छा, लोग पहले सिर पे उठा के चलते थे सड़क को, ये आप बताओगे? बात बजट पे हो रही है और ये बातें क्या कर रहे हैं, देखिए। हाँ ठीक है, बोले अब मुद्दे पर आइए सर। पानी के लिए, टैप के लिए पंकज जी उनको सुन लीजिए, आप उनको सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। बात को उल्टा बोल रहे हैं। नहीं कोई नहीं, ठीक है सर। अरे जब आपकी बारी आएगी सर, आपकी बारी जब आएगी आप अपनी बारी में बोलिए, मैं पूरा मौका दूंगा आपको। अब तो उनकी बारी है ना, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप उनके बीच में बोल रहे हैं, ये गलत बात है। रोड साहब बोलिए। ठीक है भाई। अमित जी, पहले इन्होंने बजट जुटाने की बात करी। मेरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कहना है कि बजट में आप उद्योगपतियों पर नकेल डाल के पैसा जुटा सकते थे। आप गरीब आदमी की जेब पे डाका डाल के उद्योगपतियों को बेनिफिट दे रहे हो। अगर ये जनता के विरोधी कार्रवाई है, जनता के विरोध में किया गया काम है इस बजट के अंदर। आम आदमी को आप राहत ना देके उद्योगपतियों की जेब भर रहे हो और आम आदमी पे टैक्स लगाए जा रहे हो। रोटी कपड़ा और मकान आप महंगे कर रहे हो। आप कह रहे कि चलो इनकी रोजगार वाली बात पे मैं जवाब देता हूं मेरे साथी की। इन्होंने कहा कि रोजगार बढ़ेगा अगर ये एलोकेट इन्होंने जो किया है इसमें। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सीमेंट का रेट बढ़ा रहे हो इसी बजट में, आप स्टील का रेट बढ़ा रहे हो, इसको रोजगार मिलेगा? कौन लगाएगा मकान, बताइएगा? क्या भारत सरकार का पैसा लुटाने के लिए सीमेंट का रेट बढ़ाया है? एक बार तो आप कह रहे हो कि सरकार 80 इतने मकान बनाएगी। सरकार तो आय भी दुगनी कर रही थी 2022 में। सरकार ने तो पता नहीं क्या क्या वादे किए हैं। मैं कुरुक्षेत्र का उदाहरण देता हूँ। 5 किलोमीटर की सड़क नींद पे बनी, जहां इनके राष्ट्रपति तक हर बड़े से बड़ा वीआईपी जाता है गीता जयंती। गीता जयंती का अलग से बजट है। हम किस तरीके से मान लेंगे इनकी, जिसने रोटी कपड़ा और मकान गरीब व्यक्ति की जेब पे डाका डालने का काम किया इस बजट में सरकार ने। ये चुनावी बजट है बिल्कुल। इन्होंने 25 साल का और 25,000 किलोमीटर का ये जुमले फेंके हैं। इनका कोई आम आदमी को राहत देने का इनका कोई ना सोच है, ना इनकी नीयत है और ना इनका कोई वायदा है इस बजट में। ठीक है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। ठीक है, इसमें से बजट है, ठीक है, कोई चर्चा नहीं है। हुड्डा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इसमें कोई चर्चा ही नहीं है। और ये लोग पागल नहीं है, ये बहकावे में आने वाले नहीं है इन पंच ऑफ स्टेट में। अब मैं अपने बीजेपी के जो प्रवक्ता साथी बैठे इनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर ये विषय पे बात करें, पंजाब में चुनाव चल रहा है, बताइए आपने पंजाब स्टेट के लिए क्या राहत दी है इसमें? पंजाब की सबसे बड़ी मांग एमएसपी के रेट की है। पंजाब में
कोई उद्योग का कारखाना आपने लगाया हो, बताइए आपने क्या किया? लेकिन अगर ऐसा कर देते तो आप ही बोलते ना कि वहां पर चुनाव इसलिए कर दिया, ये भी तो है ना गांधी जी ने रोड साहब। रेलवे के कारखाने दिए पंजाब स्टेट को, आपने उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, बताइए क्या दिया यूपी के लिए? बजट पे चर्चा करने सीखिए पहलेगा। ये जुमले नहीं चलेंगे, बाद में अमित शाह जी कह देंगे तो चुनाव के समय में जुमले होते हैं। ठीक है रोड साहब, लौट रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हुड्डा साहब जुमले देने लग गए। हुड्डा साहब आप जो कह रहे थे, ठीक है रोड साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास मैं आ रहा हूँ, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आ रहा हूँ। पंकज जी आ रहा हूँ मैं। हुड्डा साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रोड साहब की बात का जवाब देना चाह रहा था, बाकी आप जैसे। हाँ नहीं मैं आ रहा हूँ पंकज जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। हुड्डा साहब देखिए आप ये कह रहे थे कि भाई MSMEs को भी बढ़ावा देना सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान ही नहीं है और सरकार ने इसके लिए कोई बजट में ऐसा कोई ऐलान भी नहीं किया है। लेकिन MSME के लिए जो ऐलान किया गया है वो 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज देने का ऐलान सरकार ने आज किया है। इसके साथ ही सरकार ये भी कह रही है कि भाई किसान जो लगातार आरोप लगा रहे थे, पहले कह रहे थे कि भाई आपने जो कृषि उपकरण हैं उनको इतना महंगा कर दिया है कि उनको खरीदना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ट्रैक्टर के रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि हम खरीद ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब इसको भी सस्ता करने का इसमें ऐलान किया गया है सरकार की ओर से। तो चाहे हम किसानों को लेकर हम बात कर लें या फिर हम MSMEs को लेकर बात कर लें या एजुकेशन के लिए, जिस तरीके से पंकज जी ने बताया, आपने सुना भी होगा कि किस तरीके से इसमें भी एजुकेशन के लिए भी अलग से एलोकेट किया गया है बजट। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से मैंने पहले भी आपसे ये बात कही कि भाई कोरोना काल है, उसको ध्यान में रखते हुए, सरकारी खजाने का भी ध्यान रखते हुए बजट को थोड़ा सा लोक लुभावन ना बनाकर उसको बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। तो आप इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं क्या? नहीं अमित जी, देखिए बैलेंस क्या किया इन्होंने, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉइंट इज कि देखिए आप MSME की बात पे करते हैं या फार्मर्स की बात पे करते हैं। फार्मर्स का आपको पता है क्या हाल चल रखा है, कितना बड़ा आंदोलन चला, चलो एनीवे वो एक मुद्दा अलग है। आगे MSME पे लास्ट बजट में क्या इन्होंने डिक्लेयर किया था कि आपको 1 मिनट में लोन मिलेगा, 10 मिनट में लोन मिलेगा, उसका क्या बुरा हाल है। कितनी MSME लगी, कितनी बंद हो गई, कितने पेटेंट फाइल हुए हैं, आपको पता है कितने MSME के अंदर जब कोई लोन लेने जाता है या लगवाने जाता है, रजिस्ट्रेशन करवाने जाता है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक तो ठीक है, उसके बाद लोन लेने जाता है, किसी को लोन नहीं मिलता। आप RTI के थ्रू आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेके देखिए कितना बुरा हाल है। मतलब मैं ओवरऑल इस बजट को उस तरीके से नहीं देख रहा हूँ कि देखिए आपके घर के अंदर तंगी हो सकती है, आपकी स्टेट में तंगी हो सकती है, आपके देश में तंगी हो सकती है, तो उसकी एक कॉन्टीजेंसी प्लान होती है, बाकायदा एक रोड मैप बनता है, उसके अंदर एक एक्सपर्ट की सलाह ली जाती है। एक्सपर्ट को आपको अपना एडवाइजर रखना पड़ता है, वो एडवाइजर आपको बार बार कहते हैं ना राजा के वजीर, उसको बार बार गाइड करते रहते हैं कि नहीं अब ऐसे होगा। वो फील्ड में जाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं, महिलाओं की समझते हैं। आज के टाइम स्वास्थ्य सेवाओं का क्या बुरा हाल है। आपने कोरोना काल में आपने देख लिया, इन्होंने ऑक्सीजन की या कोविड के रिलेटेड कोविड की एक नहीं हजारों मुद्दों में कमी निकल सकती है, कुछ प्लस पॉइंट भी हो जाते हैं। अब इन्होंने कहा जी ट्रेनें चालू करेंगे। हाँ नहीं मैं हुड्डा साहब वही तो आपसे जानना चाह रहा था कि कम से कम 1-2 बात तो ऐसी बताइए जो आपको लगा, आप उससे प्रभावित हुए, आपको लगा कि नहीं ये काम तो अच्छा हुआ है, कम से कम 1-2 तो बताइए। जो हाँ मैं आपको बताता हूँ, मैं जो प्रभावित करने वाली बात है, जो नितिन गडकरी जी का डिपार्टमेंट है, नेशनल हाईवे जी का डिपार्टमेंट है, वो एक ऐसे मंत्री हैं जो एक डिफरेंस बनाएंगे। मुझे मालूम है उनको, अगर मैं जितना भी उनको क्लोज ऑब्जर्व करते हैं या उनकी वर्किंग स्टाइल को, उनकी वर्किंग शैली को, उन्होंने देश के अंदर अपनी एक छाप छोड़ी है। जहां तक नितिन गडकरी साहब की छाप है तो उनका वर्किंग स्टाइल है, अगर उनको प्रॉपर तरीके से फंड मिलता है, उनको अलोकेशन मिलता है तो जरूर वो परफॉर्म, मुझे वो ठीक लग रहा है। उन्होंने, मुझे लग रहा है कि ये सरकार देने वाली भी नहीं थी, उन्होंने धक्का मार के लिया है इसको, मुझे लगता है जहां तक। तो देखिए उसके बाद आपको ट्रेनें चलवा रहे हैं, आप ये करवा रहे हैं, वो चीजें एक इमटेरियल सी हैं। वो ट्रेन कब चलेंगी, कैसे चलेंगी, प्राइवेट चलेंगी, गवर्नमेंट की चलेंगी, क्या उसका वो होगा। तो अमित जी इन नट सेल मैं आपको अपने व्यूज पहले ही दे चुका हूँ जी, और उसके अंदर मैं साफ साफ ये कह चुका हूँ कि एक आपको ना जैसे एक शादी, मैरिज फंक्शन, बर्थडेज, एनिवर्सरीज का एक अट्रैक्शन होता है, एक फंक्शन की लोग पहले से ही प्लान करने लग जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि निर्मला जी का जो लास्ट बजट आया था उस बजट से लोग इतने मायूस हुए थे। उनको पता था कि इस बार भी मैडम कोई अर्थशास्त्री नहीं है, मैडम कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, वो टेक फिन नहीं है कि वो मतलब लोगों की नब्ज पकड़ पाए। वो जिस रीजन से, जिस क्लस्टर से वो आती हैं। लेकिन हुड्डा साहब कम से कम इतना तो आप मानेंगे कि
मोदी जी ने ही उनको ये डिपार्टमेंट दिया होगा, ये बात तो आप भी जानते हैं। अगर मोदी जी कोई फैसला ले रहे हैं तो थोड़ा उस पर तो आप भरोसा कर ही सकते हैं ना, क्योंकि आप बार बार उनको लेकर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई वो तो वित्त मंत्री बनने लायक ही नहीं, आप बार बार यही कह रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि उनको तो बजट का कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल है ना? सही कह रहे हैं आप। तो इस तरीके से सवाल खड़ा कर देना आप उचित, इसे उचित मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए हर किसी मिनिस्टर को परफॉर्म करना होता है और ये परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि पहले देखिए। लेकिन आपको याद है जिन मंत्रियों ने परफॉर्म नहीं किया उनका पत्ता साफ हुआ है कैबिनेट से। ये हाँ, क्योंकि महिला होने के नाते ये अपना इनको एक लास्ट चांस मिला है, मुझे लगता है, जहां तक जितना क्लोजली हम ऑब्जर्व करते हैं। और एनीवे मैं क्या कहते हैं कि इनसे भी अच्छे और आएंगे फाइनेंस मिनिस्टर, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को किसी और को मौका देना चाहिए, और क्या पता वो इनसे भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है हुड्डा साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, समय बचेगा मेरे पास तो। जी बोलिए पंकज जी, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। अमित जी मुझे जाना है, मेरी कहीं वो है फंक्शन अटेंड करना, मैं आपसे माफी चाहूंगा। थैंक यू सो मच। जी जी वैसे सर बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, मुश्किल से 2-3 मिनट और आपको इंतजार करना है। चल ठीक है थैंक यू जी पंकज जी। विनम्रता से मैं रोड साहब वरिष्ठ नेता है, मैं उनसे अगर उनको मेरी बात से हर्ट हुआ तो मैं माफी मांगता हूँ, हुड्डा साहब से भी माफी मांगता हूँ। पर मैं 2 चीजें, अमित जी आप भी पिछले 2-3 दिन से बजट के ऊपर डिबेट कर रहे हैं जी। हमारे कांग्रेस के मित्र और उनके प्रवक्ता डिबेट में आए हैं, मैं भी कल आपके साथ डिबेट में था। वो कल से और परसों से यही परेशान थे कि चुनावी समय है और ये लोक लुभावना बजट लेके आएंगे, लोक लुभावना बजट लेके आएंगे। और अभी मेरे मित्र सुरेश रोड जी कह रहे थे कि इन्होंने पंजाब के लिए कुछ नहीं दिया बजट में, इन्होंने यूपी के लिए बजट में कुछ नहीं दिया, इन्होंने जिस भी स्टेट में इलेक्शन नहीं है उसके लिए कुछ नहीं दिया। मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि लोक लुभावना बजट ना देने की वजह से परेशान है। कल तक इनके प्रवक्ता परेशान थे कि ये इलेक्शन में माइलेज लेने के लिए इन स्टेट्स के लिए स्पेसिफिक अनाउंसमेंट करेंगे। अमित जी कल आप मेरे साथ डिबेट में थे, मेरे को पता है। नहीं बिल्कुल ठीक है, मैंने तो शुरुआत ही इससे करी है पंकज जी, मैंने तो शुरुआत ही सवाल से की है। रोड साहब भी परेशान है कि इन्होंने पंजाब के लिए इंडस्ट्री नहीं बोली, इन्होंने यूपी के लिए, मतलब कोई एथिक्स, कोई देश में कोई कुछ तो चीज रहती होगी ना। इन्होंने देश को प्राथमिकता रखी और इलेक्शन को प्राथमिकता नहीं दी, तो क्या ये गलत किया? ठीक है रोड साहब 10 सेकंड जी बोलिए। मेरा ये कहना है पंकज जी को जी बोलिए कि इन्होंने लुभावने जुमले बिल्कुल दिए हैं। इन्होंने जो बात की है बजट में, 2-3 जुमले बताइए तो हमारे भी नॉलेज में आइए, बताइए। किलोमीटर की बात हो या 25 साल की बात हो, जुमले दिए हैं। अगर बजट में आपको 25 साल का विजन दिया है, जुमला नहीं दिया है, विजन दिया कि आपको करनी पड़ेगी। हम ये कहते हैं कि इन्होंने जुमलों से लुभावना बजट बनाया है। ठीक है हुड्डा साहब, आखिरी कमेंट आपका 10 सेकंड का आपका आखिरी कमेंट हुड्डा साहब, उसके बाद वाइंड अप करना है मुझे। हुड्डा साहब जल्दी से। देखिए अमित जी मेरा तो यही मानना है कि इसके अंदर एक पूरी कैबिनेट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कैबिनेट को इसको एक डिस्कस करना चाहिए और अब अपने व्यूज को प्रधानमंत्री जी को अपने विचारों से अवगत कराना चाहिए, लोगों की भावना से अवगत कराना चाहिए कि कितनी लोगों में निराशा आ रही है। जल्दी से जल्दी, ठीक है हुड्डा साहब जल्दी से जो परफॉर्मेंस है वो वित्त मंत्री की बजाय प्रधानमंत्री की नहीं है। और प्रधानमंत्री जी अगर वित्त मंत्री सीतारमण जी को बना के रखते हैं तो उन्होंने लुभावना बजट देने के लिए ही, उन्होंने गैर जिम्मेदार बजट ही बनाया उनको। चलिए बहुत शुक्रिया आपका रोड साहब, आपका पंकज गुप्ता जी, आपका और सुखबीर हुड्डा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन क्योंकि बजट पेश हो चुका है, अब इस बजट से आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा, देश को कितना फायदा मिलेगा, देश किस तरीके से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। मसला में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।